ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں اوور سپیڈنگ لین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ای چالان منصوبے کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دوسرے شہروں میں بھی اطلاق ہوگا۔ مزید تفصیلات علی ساہی کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ای چلان منصوبے کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ شہر کی معروف شاہراہوں پر حد رفتار لین کی خلاف ورزی پر ای چلان کیا جائے گا۔ اوور سپیڈنگ پر سپیڈ ریڈار کیمروں سے ای چلان کیے جائیں گے۔ شہر بھر میں وی ایم سی سکرینز کے ذریعے حد رفتار بارے آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ ترجمان سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق کینال روڈ پر حد رفتار 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور مین بولیوارڈ گلبرگ پر 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ اوور سپیڈنگ لین کی خلاف ورزی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ای چلاننگ سے شہر میں ٹریفک بہاؤ اور روڈ سیفٹی میں بہتری آئے گی۔ ترجمان سیف سٹی نے کہا کہ اہل لاہور وقت اور فیول کی بچت پر پروجیکٹ کے معترف ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ٹریفک مینجمنٹ نظام بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ جلد ہی ای چلاننگ منصوبہ دیگر شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ سیکیورٹی خدشات یا تہذین و آرائش، گورنر ہاؤس سیر کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے اتوار کے روز بند کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے باعث سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس اتوار کے روز شہریوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات جس تسلسل سے ہوئے ہیں وہ دہشت گرد گورنر ہاؤس آنے والے شہریوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس کو اتوار کے روز شہریوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق گورنر ہاؤس کی مرمت، تزئین و آرائش کی وجہ سے عام شہریوں کی سیر و تفریح کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان گورنر ہاؤس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 25 نومبر بروز اتوار کو گورنر ہاؤس سیر کے لیے نہ آئیں۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ لاہور شہر کی کوڑا کرکٹ سے 35 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے ایوان وزیر اعلیٰ میں چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین پی این ڈی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں چینی کمپنی نے حکومت پنجاب کو کوڑا کرکٹ خریدنے کی پیشکش کی۔ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ پنجاب حکومت کی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ چین پنجاب بھر میں سرمایہ کاری کرے گا۔ لاہور شہر کے کوڑا کرکٹ سے 35 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ شروع ہوگا، جبکہ فیصل آباد اور راولپنڈی میں 30 میگا واٹ کے منصوبے شروع ہوں گے۔ چینی وفد کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چائنیز کمپنی پنجاب حکومت سے منافع میں بھی شراکت کرے گی۔ فنڈز نہ ہونے پر اینستھیزیا مینجمنٹ سسٹم بند کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی شدید کمی سے بحران پیدا ہو گیا۔ غازی آباد، سمنا آباد، سوڈیوال اور شاہدرہ ٹاؤن ہسپتال میں آپریشن کی سہولت ناپید ہو گئی۔ روزانہ سینکڑوں مریض متاثر ہونے لگے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول اسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کے لیے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ سسٹم کے تحت اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کو فی آپریشن پیسے ادا کر کے ان کی خدمات حاصل کی جا رہی تھیں۔ رواں مالی سال میں اینستھیزیا مینجمنٹ سسٹم کے لیے فنڈز ہی فراہم نہیں کیے گئے، جس کے باعث یہ سسٹم بند ہو گیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے چھوٹے اسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی کمی سنگین بحران کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ کمپنی کے زیر انتظام غازی آباد، سمن آباد، سوڈیوال اور شاہدرہ اسپتال میں بے ہوشی کا ڈاکٹر نہ ہونے سے آپریشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے محکمہ صحت نے بے ہوشی کے ڈاکٹرز کو خصوصی پیکج کے تحت ان کا الاؤنس دگنا کرنے کی بھی تجویز کی ہے، جو 1 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا، اور فی آپریشن اینستھیٹسٹ کو 2000 روپے فیس ادا کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے بڑے فیصلے کر لیے۔ گریڈ 1 سے 15 تک محکموں میں بھرتیوں کی مشروط پابندی اٹھا لی گئی۔ 5 لاکھ افراد کو سالانہ ہنرمند اور 12 لاکھ افراد کو سالانہ روزگار فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابقہ دور حکومت کی لگژری گاڑیوں کی نیلامی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ قذافی بٹ کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں 24 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا۔ کابینہ نے نئی صنعتی پالیسی کی منظوری دی۔ نئی صنعتی پالیسی کے تحت مختلف شعبوں میں سالانہ 5 لاکھ ہنرمند افراد پیدا کیے جائیں گے، جبکہ 12 لاکھ افراد کو سالانہ روزگار فراہم کیا جائے گا۔ ہیلتھ پالیسی کے تحت رواں مالی سال میں 17 اضلاع، جبکہ مالی سال 2019 میں 36 اضلاع میں ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع کی جائے گی۔ ہیلتھ کارڈ کی رقم 3,60,000 روپے ہوگی۔ سال سے پہلے کارڈ کی رقم
खत्म होने की सूरत में इसमें इजाफा भी किया जा सकेगा। हेल्थ कार्ड में तजहीज़ व तदफीन की रकम भी रखी गई है। सेहत के शोबे में NTS के तहत 14,000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा, जबकि 3,000 डॉक्टर्स भी लिए जाएंगे। इजलास में नई लेबर पॉलिसी जबकि घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट लाने की मंजूरी समेत मुतअद्दिद अहम फैसले भी किए गए। क़ज़ाफ़ी पर सिटी 42। फिर वही काम फिर वही कहानी। PIA रोड पर मंशा बम कब्जा ग्रुप से वागुजार कराई गई जमीन पर माफिया ने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं। जुज़वी दुकानें खुल गईं, झुग्गियां फिर आबाद हो गईं। LDA हुकाम अभी तक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर अमल न करवा सकी। PIA रोड पर मंशा बम कब्जा ग्रुप से वागुजार अराजी पर माफिया ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। वागुजार कराई गई जमीन पर LDA के मातहत अमले की मिली भगत से दोबारा झुग्गियां बनना शुरू हो गई हैं, जबकि जुज़वी मिसमार शुदा दुकानें भी दोबारा खुलने लगी। LDA ने 200 अरब मालियत के 34 प्लाट वागुजार कराए। वागुजार कराई गई अराजी पर कैंप कायम करने का दावा पूरा हो सका और न ही बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की जा सकी। इस अराजी को अवामी मुफाद में इस्तेमाल का मंसूबा भी अभी तक पेश नहीं किया जा सका। इस बारे में जब मेंबर गवर्निंग बॉडी टेक्निकल LDA आमिर कुरैशी से राबिता किया गया तो उनका कहना था कि LDA ने मामलात पर नजर रखी हुई है और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने DG LDA को जमीन पर कैंप कायम करने की हिदायत की थी, लेकिन अभी तक LDA इस जमीन की हिफाजत पर अमला भी मामूर नहीं कर सकी। मुल्तान रोड सब्जी मंडी के आड़तियों और सब्जी फरोशों का मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मार्केट कमेटी मंडी में सहूलियात फराहम करने की बजाय मसाइल पैदा कर रही है। मंडी के सब्जी फरोशों को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रोजाना मंडी बंद करने के अहकाम दिए जाते हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान रोड सब्जी मंडी शहर के बेशतर इलाकों में सब्जी फराहम करती है। ये मंडी जब से कायम हुई है मसाइल का शिकार है। मार्केट कमेटी ने सब्जी फरोशों के लिए नए अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत मंडी को रोजाना सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बंद किया जाएगा, जिस पर मंडी के आढ़ती और सब्जी फरोश सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि मार्केट कमेटी उनके मसाइल में इजाफा कर रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। सही, ये दफ्तरों में बैठे हैं और वहाँ पे बैठे पॉलिसीज बनाते हैं सिर्फ लूट खसूट के लिए। इनको मार्केट कमेटी की डेवलपमेंट से 1% भी इनका कंसर्न जो है ना वो नहीं है। मुल्तान रोड सब्जी मंडी के सदर मलिक शराफत खोकर का कहना था कि कई मरतबा मार्केट कमेटी के एहलकारों को मंडी के मसाइल से आगाह किया है, क्योंकि मंडी में ना तो सफाई का इंतजाम है और ना ही सब्जी फरोशों के बैठने के लिए जगह। आढ़तियों और सब्जी फरोशों का कहना है कि इस मंडी में काम करने वाले गरीब लोग हैं, वो मंडी की हालत खुद से कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि वो मंडी में बाकायदा शेड बनाएं और सफाई का इंतजाम बेहतर करें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर FIA ने डिजिटल करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वजीर आजम की हिदायत पर क्रैक डाउन करके FIA ने साइबर क्राइम की तारीख में पहली माइनिंग मशीन पकड़ ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आदम की हिदायत पर डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। डायरेक्टर साइबर क्राइम कैप्टन रिटायर्ड शुएब की सरबराही में FIA ने साइबर क्राइम की तारीख में पहली माइनिंग मशीन पकड़ ली। हम बिड कॉलेज रन करते थे। द एम इज़ टू ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान एंड टू एजुकेट पीपल अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी सोशो इकोनॉमिक इशूज सॉल्व कर दिया। अभी तक सच हमारे पास एक भी यूज़र साइन अप नहीं जो कि हम प्रोडक्शन में से कह सके हमने इसे सेल किया। अभी हम ईद के बाद से हमने ये कॉलेज की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और अब तक हम डेवलपमेंट फेज में जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक माइनिंग मशीन से इंटरनेट पर डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन को हैक करके कॉइन में तब्दील किया जाता था। गुलबर्ग में गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की इलीगल ट्रेड हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किए हैं कि इसको क्रैक डाउन करें और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसी तरह हमने फिर इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया। इन्होंने बाकायदा कॉलेज बनाया हुआ था जहाँ पे लोगों को बाकायदा तालीम देते थे इलीगल ट्रेड। bit.college के नाम से इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बिल्ड की हुई है और इसके अलावा वहाँ पे डिजिटल करेंसी की ये ट्रेड भी करते थे। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान में हसन, रिजवान और सलमान शामिल हैं, जो इंग्लैंड में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर कारोबार कर रहे थे। IG पंजाब ने मुसालती कमेटियों के SOPs तैयार कर लिए। छोटे केसेस मुसालती कमेटियां हल करेंगी। फैसला न होने की सूरत में मुतल्लिका SHO को केस भेजा जाएगा। तफसीलात जानिए अली साही की रिपोर्ट में।
आई जी पंजाब की जानब से मसालती कमेटियों के SOPs तैयार कर लिए गए। मसालती कमेटियों के SOPs 10 नुकात पर मुश्तमिल हैं। मसालती कमेटियां छोटे केसेस को हल करेंगी जिनसे पुलिस और अदालत का वक्त बचेगा। IG पंजाब का कहना था कि मसालती कमेटियां फ्रीकन की रजामंदी के साथ ही फैसला करेंगी। जिस केस का फैसला नहीं होगा इसे मुतलका SHO को भिजवाया जाएगा। अमजद जावेद सलीमी के मुताबिक एक जिला में 21 अफराद पर मुश्तमिल मसालती कमेटी बनाई जाएगी। मुतलका DPO मसालती कमेटी के मेंबरान का इंतखाब करेगा। IG पंजाब ने कहा कि मसालती कमेटियों के मेंबरान बगैर पैसों के रजामंदी से काम करेंगे। SOPs के मुताबिक हर 3 माह बाद कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगा। कमेटी में हिस्सा न लेने वाले मेंबरान को फारिग कर दिया जाएगा। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं कि सेक्रेटरी मेंबरान का शेड्यूल बनाएगा, जबकि मेंबरान के ताउन से एक पुलिस अफसर भी मुकर्रर किया जाएगा। कम बैक खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब का शहर समेत पंजाब भर के दरबारों पर पानी के तहफ्फुज के लिए ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाने का फैसला सामने आया। मंसूबों के हवाले से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने दरबारों में ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाने का फैसला किया है ताकि वुज़ू खानों में इस्तेमाल होने वाले पानी को महफूज बनाया जा सके। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने दरबारों में ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाने का फैसला किया है ताकि वुज़ू खानों में इस्तेमाल होने वाले पानी को महफूज बनाया जा सके। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए महकमा औकाफ पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी को सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ, डेप्यूटी डायरेक्टर आर्किटेक्चर औकाफ और एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ पंजाब भी कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। नोटिफिकेशन में तमाम जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को हिदायत की गई है कि वो दरबारों पर 24 घंटे इस्तेमाल होने वाले पानी की मिकदार का जायजा लें और वुज़ूखानों में लीकेज को फौरी तौर पर बंद करके इक़दामात उठाएं। शाहदरा से ताल्लुक रखने वाले ठेकेदार इशफाक की खातून ने खूब दुर्गत बनाई, थप्पड़ और जूतों से खूब गुस्सा निकाला। ये रिपोर्ट देखिए। अरे इतना गुस्सा! कुर्सी पर बैठे ठेकेदार शेख अशफाक पर खातून का अचानक हमला, थप्पड़ों और जूतों की बरसात, रोकते रोकते सारा गुस्सा निकाल दिया। जी हाँ, ये शेख अशफाक नामी शाहदरा के एक ठेकेदार हैं जिनकी खातून पिटाई कर रही है। जराये के मुताबिक ठेकेदार अशफाक और लीगी MNA मलिक रियाज के भाई मलिक अब्रार मुश्तरका ठेकेदारी करते हैं और कमीशन के मामले पर मलिक अब्रार शेख अशफाक से नाराज हो गए, जिसका गुस्सा उन्होंने अपने ही अंदाज में निकालने की कोशिश की। मलिक अब्रार की एंट्री भी देखें। अपने ही एक साथी के जरिए शेख अशफाक को काबू में कराया और खुद खातून को रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हंसते हंसते कभी दाएं होते हैं और कभी बाएं, गोया के खातून को पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। शेख अशफाक का कहना है कि मलिक अब्रार मुझे पैसे मांगने पर कत्ल की धमकियां देता है। खातून को 50,000 रुपए देकर बुलाया गया। वीडियो बदनाम करने के लिए बनाई गई। मलिक अब्रार और खातून के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये ठेकेदार जो इब्रार है, ये बड़ा पावरफुल आदमी है। ये मुझे कत्ल की धमकियां भी दे चुका है और मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल ये कर चुका है। जैसे ये सारा दौर चाहे है और उसके खिलाफ भी करूंगा, वो खुद ही बीच में आ जाएगी। ठेकेदार शेख अशफाक ने पिटाई से बचने के लिए खातून को निकाह की ऑफर भी की, मगर खातून ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी और लगातार अपना मिशन जारी रखा। फरहान यामीन, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एरियाज की रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के नक्शाजात को टीपा के एतराज़ात पर मंसूख किया गया, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 7 कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के नक्शाजात बगैर किसी एतराज़ के मंजूर कर लिए गए। दारुल शफ़क़त को मस्जिद और मदरसे की तामीर की इजाज़त मिल गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। सिटी 42 को मौसूल होने वाले हाई लेवल डिजाइन कमेटी के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एरियाज की 3 इमारतों के नक्शों पर एतराजात लगाए गए, जबकि LTA के ज़ेरे कंट्रोल एरियाज की 7 इमारतों के नक्शे क्लियर कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एरियाज में तामीर होने वाली 3 इमारतों के नक्शों पर टीपा ने एतराज लगा दिए। हाई लेवल डिजाइन कमेटी ने MCL एरियाज की 3 कमर्शियल इमारतों के नक्शाजात की ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दिया है। दातागंज बख्श जोन, समनाबाद जोन
जोन, शालामार जोन और गुलबर्ग जोन के एरियाज के नक्शे हाई लेवल डिजाइन कमेटी को भेजे गए। समनाबाद जोन के ज़ेर कंट्रोल मुल्तान रोड पर दारुश शफकत की 5 केनाल 7 मरला अराजी पर मस्जिद और मदरसा तामीर करने की मंजूरी दे दी गई। दातागंज बख्श जोन के एरिया लिटन रोड और शाहराह कायद आजम पर तामीर होने वाली कमर्शियल इमारतों के नक्शों पर टीपा की जानिब से एतराजात लगा दिए गए, जबकि गुलबर्ग जोन के ज़ेर कंट्रोल एरिया मैक्लोड रोड और डेविस रोड की स्मॉल इंडस्ट्री की 6 केनाल 5 मरला बिल्डिंग का नक्शा मंजूर कर लिया गया। शालामार जोन की 3 में से 2 कमर्शियल इमारतों का नक्शा मंजूर, जबकि शालीमार लिंक रोड पर वाक़े 18 मरला कमर्शियल शॉप्स का नक्शा मंसूख कर दिया गया। हाई लेवल डिजाइन कमेटी ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे कंट्रोल एरिया की 4 रिहायशी जबकि 3 कमर्शियल इमारतों के नक्शे मंजूर कर लिए हैं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदलजाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वाइस चेयरमैन को अथॉरिटी के मुकम्मल इख्तियारात देने की मुखालफत की गई। वाइस चेयरमैन को बाइख्तियार बनाने का एजेंडा भी ज़ेरे बहस आया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गवर्नर बॉडी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक LDA की अहम शख्सियत ने चेयरमैन के इख्तियारात सूबाई वज़ीर को तफवीज़ करने की सिफारिश की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ मुस्तरद करके वाइस चेयरमैन पर भरपूर एतमाद का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान को बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ की तौसीक कर दी। वज़ीर आला ने आइंदा वाइस चेयरमैन को वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में अथॉरिटी इजलास बुलाने और सदारत करने के इख्तियारात दे दिए। पंजाब हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को झटका। दातागंज बख्श जोन को मॉडल जोन बनाने के लिए इकदामात में ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग आमिर भट्ट तजावुजात के खात्मे में रुकावट बन गए। बोहड़वाला चौक में ऑपरेशन की इतला लीक करने पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग जोन आमिर भट्ट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू के मुताबिक जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट ने महकमे की कार्रवाई बारे रेढ़ी बानों को क्यों बताया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने बोहड़वाला चौक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की इतला मुतल्लिका गुलबर्ग जोन के जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट को दी, लेकिन ऑफिशियल कार्रवाई को सीगा एराज में न रखा गया और ऑपरेशन की इतला पहले ही दे दी गई। बोहड़वाला चौक पर रेढ़ी बानों का एहतजाज गैर कानूनी है। सड़क ब्लॉक करके रेढ़ी बान और दुकानदार प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट से रेढ़ी बानों को ऑपरेशन की खबर देने पर वजाहत तलब कर ली गई है। मिशन क्लीन लाहौर के ऑपरेशन में आड़े आने पर लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, DC लाहौर और चीफ ऑफिसर को मुत्तला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का तौसी मंसूबा मंजूर कर लिया गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 मंजिला नई इमारत के लिए 82 करोड़ 52 लाख रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तरक्याती बोर्ड में चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी PND इफ्तिखार अली सहू और महकमा पब्लिक बिल्डिंग के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट की इमारत के साथ इजाफी इमारत की तामीर के मंसूबे का PC1 पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट हाई कोर्ट इंतजामिया की सिफारिशात के मुताबिक नई इमारत तामीर करना चाहता है, जिसके लिए उन्हें 82 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। इमारत में 2 बेसमेंट, जजेस लाइब्रेरी और मुख्तलिफ दफातर कायम किए जाएंगे, जिसके लिए चेयरमैन PND बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने मंजूरी दे दी और महकमा खजाना के हुकाम को लाहौर हाई कोर्ट में 10 मंजिला नई इमारत की तामीर के लिए जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने के अहकाम दिए। पंजाब हुकूमत ने पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील करने के लिए अमली इकदामात के लिए इस्लाहात तश्कील दे दी। 7 रुकनी रिफॉर्म्स कमेटी में गैर मुल्की पुलिस ऑफिसर को भी शामिल किया गया है। तहरीक इंसाफ ने पुलिस में इस्लाहात करने की एक मरतबा फिर ठान ली है। इंतजामी ढांचे में तब्दीली और पुलिस इस्लाहात के लिए अपनों पर एतबार नहीं, लिहाजा तब्दीली के लिए साबिक बरतानवी पुलिस अफसर को भी शामिल कर लिया गया है। बरतानवी पुलिस अफसर पंजाब पुलिस के मौजूदा साबिक अफसरान को बताएंगे कि पुलिस में क्या इस्लाहात लाई जाएं। 7 रुकनी कमेटी की सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम करेंगे। दीगर में IG पंजाब अली मुर्तजा, साबिक IG पंजाब मेजर रिटायर्ड ज़ियाउल हसन, साबिक सिविल सर्वेंट सलमान खनी, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर लंदन मैक चिश्ती और एक साबिक जुडिशल अफसर को शामिल किया जाएगा। कमेटी 1 माह में वज़ीर आला को इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार करके पेश करेगी, जबकि हतमी मुसव्वदा कैबिनेट की मीटिंग से पहले पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब की तैनाती के तरीकाकार के हवाले से दायर दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी को 26 नवंबर को तलब कर लिया। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने अब्दुल रज़ाक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी कानून सलाहुद्दीन और AIG ह्यूमन राइट्स सैफुल मुर्तजा समेत दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर ने सेक्रेटरी कानून से इस्तफसार किया कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन के क़याम के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया। सेक्रेटरी कानून बोले वो इस बारे में तफसीली मालूमात नहीं रखते। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी कानून के जवाब पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि फिर पब्लिक सेफ्टी कमीशन का मामला किससे मुतालिका है। सेक्रेटरी कानून बोले होम सेक्रेटरी से मुतालिका है, वही बेहतर बता सकते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि नए पुलिस ऑर्डर के तरमीमी एक्ट के लिए
मुसविदा वज़ीर आला को भिजवाया गया है। नए कानून के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला अहम नौयत का है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौका इख्तियार किया कि आईजी समेत आला पुलिस अफसरान की तैनातियों के लिए 16 बरसों से कानून पर अमल नहीं किया गया। पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक आईजी पंजाब की तैनाती के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील जरूरी है। हुकूमत नई तजावीज़ और सिफारिशात को जवाब बनाकर मामले में ताखीर कर रही है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए होम सेक्रेटरी पंजाब को जवाब समेत जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मलिक अशरफ, सिटी 42। मुल्क की तारीख में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवां हफ्ते सोना 2,500 रुपए महंगा होकर 64,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने के जेवरात की शौकीन खवातीन में परेशानी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। शहर के सराफा बाजार और मार्केटों में सोने की कीमतों को पर लग गए। मुल्क की तारीख में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान सोने की कीमत में 2,500 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 64,000 रुपए का हो गया। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 58,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बिलखुसूस खवातीन को परेशानी से दो चार कर दिया है। खवातीन का कहना है कि शादियों के लिए सोना खरीदना मजबूरी बन चुका है। लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद अफजल सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफे को बैनुल अक़वामी सराफा मार्केट से मुंसलिक करते हैं। जरगर कहते हैं आलमी मार्केट में सोने की खरीदारी में इजाफा हुआ, जिसके बायस कीमतें बढ़ी और इसके असरात मकामी सराफा मार्केटों पर भी मुरतब हुए। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शाकिर रोड इचरा पर सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना है कि न सिर्फ सर्दी बल्कि गर्मी में भी सुई गैस की लोड शेडिंग होती है। गुज़श्ता एक माह से सुई गैस के कम प्रेशर और अक्सर लोड शेडिंग का सामना है। उनका कहना था कि वो सिलेंडर्स, तेल वाला चूल्हा और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने महकमा सुई गैस और मुंतखब सियासी नुमाइंदों से मसला हल कराने का मुतालबा किया। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर के ज़ेर एहतमाम इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। 14वें रोज भी 3 खुश नसीबों का उम्रे के लिए कुरान निकाला गया। इस मौके पर रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद की जानिब से ग्रीन फ्राइडे पर 70% डिस्काउंट का ऐलान भी किया गया। खाना काबा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर से 3,000 की खरीदारी करने वाले शहरी कुरानंदाजी का हिस्सा हैं। 14वें रोज कुरानंदाजी इकबाल टाउन ब्रांच में हुई, जिसमें 3 खुश नसीब उम्रे के टिकट्स के हकदार ठहरे। रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना अख्तर का कहना है कि ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो उम्रे के पैकेज तकसीम कर सके। इस मौके पर राना अख्तर ने ग्रीन फ्राइडे में अप टू 70% डिस्काउंट खरीदारी पर अप टू 70% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। उम्रा पैकेज हासिल करने वाले अफराद की खुशी भी दीदनी थी और उम्रे का टिकट हासिल करने पर रहीम स्टोर की इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा करती रही। तकरीब के अख्ताम पर आसान सवालात के जवाब देने वालों में कुरान मजीद इनाम में दिए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। गवर्नमेंट हाई स्कूल अत्तो की अवान लाहौर कैंट ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद तलबा से कमरा जमात की सफाई कराई जाने लगी। स्कूल में दर्जा चहारिम का मुलाजिम ना होने के बायस बच्चों से स्कूल का फर्नीचर भी उठाया जाने लगा। लाहौर कैंट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल अत्तो की अवान में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद तलबा से सफाई कराई जाने लगी। हेड मास्टर शाहिद सदीक का कहना है कि महकमे की जानिब से स्कूल की सफाई के लिए एक भी खाकरूब नहीं दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक एहसान का कहना है कि बच्चों से सफाई कराना दुरुस्त नहीं, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से किसी भी सूरत इस तरह सफाई करवाना जो है वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में ये जो फुटेज सामने आई है ये इंतहाई नामुनासिब है। इस हिस्से में बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सदर राना अता मोहम्मद का कहना है कि स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय हर स्कूल को कम अज कम एक खाकरूब जरूर मुहैया करना चाहिए। जितना छोटा स्कूल है, ये बड़ा 100 कनाल का है या 2 कनाल का है,
کم سے کم ایک سویپر تو ہو تاکہ وہ اس کی صفائی کر سکے. تو اس طرح سے بچوں سے کام کرانے کی بجائے اگر سویپر مل جائیں اداروں کو تو وہ صفائی بہتر ہو سکے گی. صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں 31,000 خاکروب بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، جن کی بھرتی کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے پاس 5 ارب روپے کا بجٹ ہی موجود نہیں. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. جنوری میں ادویات کا سٹاک ختم ہونے کا خدشہ ہے. سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر تمام اضلاع کے سی ای اوز ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سی ای اوز کو ادویات کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے اور شارٹیج کی صورت میں لوکل پرچیز کے تحت کمی پوری کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں. رواں مالی سال میں ادویات کی خریداری کا عمل بروقت شروع نہ ہونے سے تمام اضلاع، ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ادویات کی جنوری میں شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس صورتحال کے تدارک کے لیے سیکرٹری پرائمری ہیلتھ محمد خان رانجھا کی صدارت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سی ای اوز ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر منیر احمد، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر احمد سعید خالد، ڈاکٹر شہناز، ڈاکٹر عاصم الطاف، ڈاکٹر ید اللہ، ڈاکٹر یونس، ڈاکٹر سعید اختر، ڈاکٹر سعید اللہ خان سمیت ہیلتھ مینیجرز بھی شریک ہوئے. کانفرنس میں تمام اضلاع کے سی ای اوز کو ہدایات دی گئیں کہ ادویات کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے منسلک نجی اسکولوں کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ اور پیف کے تحت 7,243 پرائیویٹ اسکولوں کا ٹیسٹ ہوگا. الحاق شدہ نجی اسکولوں کو کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لازمی طور پر پاس کرنا ہوگا. ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت منسلک اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کا کوالٹی ٹیسٹ لیا جائے گا. پیف اسکول صوبے بھر کے 7,243 نجی اسکولوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ابھی آپ کو بتائیں گورنر پنجاب کی مختلف ممالک کے 27 رکنی صنعتکاروں کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے. چودھری سرور کا کہنا ہے دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 پاکستانی قربانیاں دیں اور 1 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. نئی لیبر پالیسی میں مزدوروں کی حفاظتی تدابیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل کی جرمن وفد سے ملاقات پر گفتگو. مزید تفصیلات دیکھیے سعود بٹ کی اس رپورٹ میں. جرمن کمپنی جس کے نمائندگان ڈاکٹر جرلنگ، مس ہنبر اور مس رومینا نے صوبائی وزیر سے ملاقات کی. ملاقات میں کام کرنے والے مقامات پر حادثات کی روک تھام اور لیبر انسپیکٹرز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور یو ایس ایڈ کے مابین طبی سہولتوں کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق ہوا. دونوں اداروں کے نمائندوں کے اجلاس میں ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتری کے لیے اشتراکی عمل کا جائزہ بھی لیا گیا. یو ایس ایڈ کے سینئر ٹیکنیکل ڈاکٹر محمد احمد عیسیٰ اور ڈاکٹر محمد اسماعیل پر مشتمل 2 رکنی وفد نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی ای او ڈاکٹر محمد اجمل خان سے ملاقات کی. اس موقع پر کمیشن کے ڈائریکٹرز ڈاکٹر مشتاق سلہریہ اور ڈاکٹر محمد انور جنجوا بھی موجود تھے. ملاقات میں یو ایس ایڈ کے وفد کا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہسپتالوں اور کلینکس پر بہتر فراہمی صحت کے معیار کو بہتر بنانے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. حکومتی اراکین کی جانب سے ہونے والی میٹنگز اور احکامات کا احوال جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ صنعتی پالیسی پر عمل درآمد سے روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے. 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے بنائی جانے والی وفاقی ٹاسک فورس برائے ہاؤسنگ کا پنجاب میں پہلا اجلاس. منصوبے کے تحت بینکوں، سرمایہ کاروں اور عوام کو زمین کے لین دین سے متعلق درپیش مسائل کو مؤثر طریقے سے نمٹانے کے لیے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی اور قرضوں کے حصول کے لیے اسپانسر شیلٹر فاؤنڈیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا. چیئرمین یونین کونسل 198 مردان علی زیدی اور وائس چیئرمین جہانگیر احمد خان کی جانب سے یونین کونسلز کی سطح پر ہونے والے سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد بارے اجلاس ہوا. گنگا رام اسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ گائنی یونٹ بنانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ گائنی یونٹ اسپتال کی زیر ملکیت ایک خستہ حال رہائش گاہ کی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ جو منصوبے پنجاب کے لیے ضروری ہیں انہیں جاری رکھا جائے گا. جن منصوبوں میں خامیاں ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के दफ्तर का दौरा। नियाज़ असलम इकबाल का कहना है कि बिजनेस प्लान देने वाले हुनरमंद नौजवानों को 30 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज में तैनात अफसरान को मशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। स्कूल की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए मीटिंग 26, 27, 28 नवंबर को कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में होगी। पंजाब हुकूमत पहले माली साल में ही बहरान का शिकार। हुकूमत को अपने अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा में मुश्किल पेश आने लगी। डेप्यूटी मेयर मियां मोहम्मद तारिक की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों बारे इजलास। समनाबाद में 600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स तकसीम की जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 25वें कॉन्वोकेशन में 2263 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 20 तलबा को PhD की असनाद भी दी गईं। तफसीलात अकमल सुमरो की रिपोर्ट में जानिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर चांसलर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद कुरैशी ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। UAT लाहौर और सब कैंपसेस के 2263 तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। 71 तलबा को मेडल्स, PhD की 20, MPhil की 564 और BSc की 1680 असनाद तकसीम की गईं। हिरा मकसूद ने 5, मरियम जुल्फकार ने 4, इसरा तारिक, उसामा नसीर, हमजा अशरफ, फैजान मुनीर, हाफिज समीउल्लाह ने 3-3, जबकि तंजीला अनीस, सैयद अली हादी नकवी, अतीका बतूल ने 2-2 मेडल्स हासिल किए। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि इंजीनियरिंग इदारों के निसाब को अपडेट करना होगा। यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, particularly the engineering universities, must update their curricula and experiment with new pedagogical skills to keep pace with fast moving world. वाइस चांसलर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने कहा कि मुस्तकबिल में भी तलबा अपने प्रोजेक्ट्स वक्त पर जमा कराएं ताकि इनको बरवक्त असनाद जारी की जा सकें। उन्हें उम्मीद है कि इंडस्ट्री में भी ये तलबा अपना अच्छा नाम बनाएंगे। ग्रेजुएट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खत्म होने पर खुश भी हैं और उदास भी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इतनी कम फीस में आप इंजीनियर बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर उसके बाद आप बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप कहीं पे भी आपको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। आज मतलब कि हमारे आपसे हमसे पूछा जाए तो मतलब कि बहुत दुख हो रहा है इससे जाने में, लेकिन वाकई ये बहुत अच्छी लाइफ है। पास आउट होने के बाद हम लोगों ने जाकर जब इंडस्ट्रीज़ के इंटरव्यू दिया तो एक बड़ा हमें अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिला। UET की जो रेपुटेशन है उसके लिहाज से भी इसका नाम तो आई थिंक लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा है और लाइक UET के ग्रेजुएट्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। UET के ग्रेजुएट्स ने डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए हुकूमत को नौकरियां फराहम करने का बंदोबस्त भी करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में भंगड़ा नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारों ने परफॉर्म करके खूब समा बांध दिया। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट में। सोमालिया के डिप्टी कमर्शियल अताशी अब्दुल कादिर उस्मान की लाहौर चैम्बर के नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात हुई। दो तरफा तिजारत में इजाफे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल के साथ सोमालिया के डिप्टी कमिश्नर अताशी अब्दुल कादिर उस्मान की मुलाकात में दो तरफा तिजारती मामलात पर अहम गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अब्दुल कादिर उस्मानी का कहना था कि पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट में इजाफे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल का कहना था कि सोमालिया के साथ तिजारत को बेहतर बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। तारीख पर तारीख, मंशियात स्मगलिंग केस में मुलव्विस गैर मुल्की मॉडल की सेशन अदालत में पेशी हुई। जज की छुट्टी पर होने के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। ड्यूटी जज ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुनशियात स्मगलिंग केस में मुलव्विस गैर मुल्की हसीना टेरेसा एलेस्को को जेल से सेशन अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा चेक रिपब्लिक की शहरी है और मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। बैंकिंग कोर्ट पंजाब के जज मलिक मुनीर जोया ने बैंक से 2 करोड़ की रकम जालसाजी से निकलवाने में मुलविस मुलजिम गफार याकूब को जुर्म साबित होने पर 39 साल कैद और 1 करोड़ 99 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फैसले के बाद मुलजिम को जेल भिजवा दिया गया।
कामयाबी के 2 साल पूरे होने पर माई स्कूल की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि माई स्कूल की दूसरी सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया। माई स्कूल की कामयाबी के 2 साल पूरे होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। माई स्कूल के चेयरमैन चौधरी नसरुल्लाह का कहना था, माई स्कूल ने अपने मयार की वजह से बहुत ही कम अरसे में लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाई है। फोर्बे इंटरनेशनल स्कूल लेक सिटी में फैशन शो और टैलेंट नाइट का इनेकाद किया गया। नौजवान तलबा ने रैंप पर वॉक करके शुरा के दिल जीत लिए। तफसीलात जानिए उस्मान इलियास की रिपोर्ट में। लेक सिटी में फोर्बे इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेरे एहतमाम फैशन शो और टैलेंट नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने दिलफ्रेब मलबूसात ज़ेबतन करके रैंप पर वॉक। स्कूल के हेड मिस्ट्रेस अस्मा रिजवान, मिस जरीन, मिस सदफ और मोहम्मद साकिब समेत तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैशन शो में तुलबा मॉडर्न और शाही तर्ज अंदाज में रैंप पर जलवागर हुए। अदाकारी पर मबनी परफॉर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनके अंदर छुपी सलाहियतों के निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिससे उनको अपने हुनर को मंजर आम पर लाने का मौका मिलता है। कैमरामैन शुएब सफदर और जाफर भट्टी के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42।